We're looking at different hindrances in grace, receiving grace up to now. हम देख रहे थे अनेक बाधाओं को जो अनुग्रह को हमारे पास आने से रोकती हैं। And from today and next week, we're going to look at the aspect of receiving blessings from God through His grace. और अब हम 2 हफ्ते देखेंगे कि रिसीव व्हाट ब्रदर कुड नॉट The blessings of God through grace. अब परमेश्वर की आशीषें जो हमें अनुग्रह के द्वारा से मिलती हैं। In the Old Testament time, blessings were conditional to obedience. पुराने समय में, पुराने जमाने में जो पुराने नियम के समय में हम देखते हैं जो आशीषें थी वो उस बात पर आधारित थी कि हम कितने आज्ञाकारिता हैं, आज्ञाकारी। To the time of the law, and the Lord had told them when they obeyed the word of God, they'd be blessed. They disobeyed the word of God, they'd be cursed. और परमेश्वर के वचन में उनको आज्ञा मिली हुई थी, व्यवस्था में उनको मिला हुआ था, अगर आज्ञा मानोगे तो आशीष पाओगे, आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। And in the book of Deuteronomy, 27-28 chapter, we read about how God told them that. And 28th chapter talks about the specific blessings for obedience and the curses for disobedience. और व्यवस्था विवरण के 27वें 28वें अध्याय में बड़ी सफाई से साफ-साफ लिखा कौन कौन सी आशीषें मिलेगी आज्ञा मानने से और कौन कौन से श्राप मिलेंगे आज्ञा नहीं मानने से। There were 2 mountains in Israel from which the 6 tribes supposed to pronounce blessings. That is Mount Gerizim and Mount Ebal. 6 tribes will pronounce curses for disobedience. और 6 गोत्र 2 पहाड़ थे इजराइल में, इबाल का और गेरिजिम का, और उनको 6 गोत्रों को दोनों साइड में खड़ा किया गया था और एक पहाड़ से आशीषें बोली गई थी और एक पहाड़ से श्राप को बोला गया था। And the Lord told them if they obeyed the Lord, they wouldn't have to fight the war, the battles there in the land of Canaan. God will Himself fight for them and give them the land. तो परमेश्वर ने उनको वादा दिया था कि अगर वो मेरी आज्ञा मानेंगे, अब तो मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम्हें कोई युद्ध नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे को विजय दिलाऊंगा। When they obeyed God, they were blessed. When they were blessed, they became proud. Then they forgot God, and then they went away from God, and they got into trouble. और वो जब उन्होंने आज्ञा मानी वो आशीष पाए, पर जब वो आज्ञा नहीं मानने लगे, परमेश्वर से दूर हो गए, तो वो समस्या में पड़ गए। That is the pattern in the Old Testament time. और ये पुराने नियम के समय के देखें तो ये एक ऐसा क्रम सा बन गया था। In Hosea chapter 13 verse 6, God says, "When I fed them, they were satisfied. When they satisfied, they became proud. Then they forgot me." और होशेया 13:6 में लिखा, परंतु जब इजरायली चराए जाते थे तब और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। We see a pattern in the Bible, especially in the book of Judges. Whenever the leaders were close to God, the people were close to God. और हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक में एक बड़े क्रम को देखते हैं कि जब उनके अगुवे परमेश्वर की आज्ञा मानते थे तो सब आज्ञा मानते थे। When they obeyed God, they were blessed. When they were blessed, they became proud. They forgot God, got into trouble, and God sent them the prophets. और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी तो आशीष पाए, पर जब आज्ञा नहीं मानी तो वो समस्या में पड़ गए और ऐसे में परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को उनके पास भेजा। And when they had a desire to come back to God, God sent the prophets. They listened to the prophets, they were again blessed. और जब उन्होंने आज्ञा परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की आज्ञा मानी तो परमेश्वर ने उनको फिर से उन्हें आशीष दी। So blessings in the Old Testament time were conditional to obedience. तो परमेश्वर पुराने नियम में जो आशीषें थी वो इस बात पे आधारित थी कि कितनी आज्ञा, कैसे आज्ञा मान रहे हैं। Not so in the New Testament. और ये नए नियम में ऐसा नहीं है। In John chapter 1 verses 16 and 17 we read, यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, from the fullness of His grace we receive blessing after blessing. और क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। For the law, this is verse 17, for the law came through Moses, grace and truth came through Jesus. और 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। God sent the Son of God into the world not only to give us everlasting life, also to give us abundant life. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा संसार में, इसलिए नहीं कि हमें आशीष दे, पर बहुतायत का जीवन दे। In Romans 8:32 it's written, रोमियो 8:32 में लिखा है, He did not spare His own Son but gave Him up for us all. सो जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, Who not along with the Son graciously give us all things. वह उसके साथ हमें और सब कुछ
क्यों करना देगा? All things we need are given to us graciously because of the grace of the Lord Jesus Christ. सब चीजें जो परमेश्वर से मिली है, अनुग्रह के द्वारा मिली है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। Now, in many churches on the Sunday morning when they have the worship service, at the end of the worship service, there's something called benediction that the leader announces or utters. और बहुत से कलीसिया हम देखते हैं कि जब सभा खत्म हो जाती है तो अंत में जो अगुवाई कर रहा होता है वो एक बेनिडिक्शन या अंत में आशीष का वचन बोलता है। And in 2 Corinthians 13-14 is the most popular benediction. और दूसरा कुरिन्थियों 13-14 जो है ये सबसे जाना पहचाना अंतिम वचन होता है। Paul writes, पौलुस ऐसे लिखते हैं, Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। But because the love of God the Father, He sent Jesus Christ to the world. और क्योंकि परमेश्वर पिता का प्रेम इतना ज्यादा था कि उसने अपने पुत्र को संसार में भेज दिया। So the grace of the Lord Jesus Christ been given the Holy Spirit. और उसके द्वारा हम उसे विश्वास करने से द्वारा से हमें पवित्र आत्मा जी का दान मिलता है। And who gives us Lord Jesus Christ announced with the Holy Spirit. और ये कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी से हमारा अभिषेक करते हैं। And the Holy Spirit lives inside us. और पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर निवास करते हैं। And they're called to have fellowship with Him. और हमें बुलाया गया है कि हम उसके साथ संगति करें। How many Christians have fellowship with the Holy Spirit? कितने मसीह हैं जो पवित्र आत्मा जी के साथ संगति करते हैं, सहभागिता करते हैं? Fellowship means two-way communication, not one-way communication. और संगति का मतलब है कि दोनों तरफ से बातचीत हो, ये नहीं कि एक ही तरफ से बातचीत होती रहे। And because Holy Spirit lives inside us, we are called to have fellowship with Him, which means talk to Him and hear from Him. और क्योंकि पवित्र आत्मा जी हमारे हृदय में हमारे अंदर रहते हैं, तो इसलिए हमें बोला गया कि हम उससे बात करें, उसकी सुने। And therefore, it's in having fellowship with the Spirit of God that we realize that everything we need for life and godliness has been given to us. और उसके द्वारा से हम इस बात को समझते हैं कि जो कुछ हमारे को अपने जीवन में जीवने के लिए चाहिए, धार्मिकता के जीवन के लिए, वो हमारे को पहले से ही पवित्र आत्मा जी के द्वारा मिली है। 2 Peter 1:3, Peter writes, His divine power has given us everything we need for life and godliness. दूसरा पत्र से 1:3 में लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य से हम सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। दिया गया है, it's already given to us. It's all past tense. ये पहले ही दे दिया गया है, अब ये भूतकाल की बात हो गई है। And Ephesians 1:3 talks about that God has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. और इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पिता का धन्यवाद कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी हैं। So as we are careful about removing all the hindrances in grace that came to us in the last 2 weeks, I'm looking at that. और जैसे हम 2 हफ्ते से देख रहे हैं कि कैसे जो बाधाएं इस अनुग्रह को आने से रोकती हैं, उसको हम हटा देते हैं। We're able to receive more and more grace from God for every aspect of Christian life. हम परमेश्वर से और अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करते हैं ताकि हमारे मसीह जीवन के हर पहलू में हमें सहायता मिल सके। Things of God are asked and received. परमेश्वर की जो बातें हैं वो मांगी जाती हैं और मिलती हैं। And we have to ask Him for the right gifts and for us to be blessed in our walk with God. और हमें उन आशीषों को परमेश्वर से मांगना है और हमारे को उन आशीषों के द्वारा से उसके साथ साथ चलना है परमेश्वर के साथ। What we ask of God reveals how our heart is. जो हम परमेश्वर से मांगते हैं वो प्रकट करता है हमारा हृदय कैसा है। We ask only for earthly blessing, then we are basically materialistic people. अगर हम संसार की चीजें ही मांगते रहते हैं, इसका मतलब हम सब संसारिक चीजों में ही फंसे हुए लोग हैं। But we seek for spiritual blessing that shows our heart is for God. पर अगर हम आत्मिक चीजों की खोज में रहते हैं तो इसका मतलब हमारा हृदय परमेश्वर के लिए है। So I'm going to start off today by talking about the spiritual blessings God has already given us in the heavenly realms. We must receive it in the earthly realm. तो हम उन बातों की, उन आशीषों की बात करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे को पहले ही दे दी हैं स्वर्गीय स्थानों में, और हमारे को इनको सिर्फ स्वीकार करना है। In 1 Corinthians 15:19, Paul writes, If only for this life we have hope in Christ, we should be pitied more than all people. और 1 कुरिन्थियों 15:19 में पौलुस लिखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। Now, when Lord Jesus walked this earth, there were so many people blessed through His ministry.
जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से आशीष पाते थे। More than 5,000 people were fed from 5 loaves of bread and 2 fish. 5,000 people, more than 5,000 were fed miraculously. और दो 3 मछली और 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से ज्यादा लोगों ने आश्चर्य रूप से पूरी तरह से खाना खाया, भोजन खाया। Then 4,000 people were fed with 7 loaves of bread and 2 fish. और फिर 7 रोटी और 2 मछली से 4,000 लोगों ने खाना खाया। When he was in Capernaum, as where he was based after he began his ministry, there was a time when all the people in the neighboring towns came to the place where he was staying, and even he began to minister to them. और जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में थे, जो उनका जगह थी, तो बहुत आस पड़ोस के लोग जो थे वहां पे आते थे और प्रभु उनकी सेवकाई करता था, उनको वचन देते थे। After he healed Peter's mother-in-law of fever, the whole town gathered in his door, and he began to minister to them and prayed and healed them of demonic possession and also of physical illnesses. और जब पतरस की सास को प्रभु ने चंगा किया, तो और भी बहुत सारे लोग वहां आए, सबको प्रभु ने चंगा किया, जो दुष्ट आत्मा थी उनको निकाला और बहुत आशीष दी लोगों को। The people came to him for physical healing, for dispersion from demons. They came to him for food, bread and fish. How many were there for spiritual blessings, to know him more and more, to be receiving the anointing of the Holy Spirit? तो जितने लोग वहां थे वो अपनी चंगाई के लिए, अपने आप दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए और खाने पीने के लिए प्रभु के पास आते थे। कितने थे जो वहां पे प्रभु यीशु मसीह के पास आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक जीवन को पाने के लिए वहां पे आए। But in the 40th day after the Passover and 50th day when the anointing came upon people, how many were waiting for the anointing? Only 120. और जब पासोवर के 48 दिन के बाद जब सब लोग वहां इकट्ठे थे, कितने लोग थे वहां पे जो इस पवित्र आत्मा जी का स्वीकार करने के लिए इंतजार करते? सिर्फ 120 लोग थे। The Lord had told them in Acts 1:8, you stay in Jerusalem till you are clothed with power from on high. और प्रभु ने उनको बोल दिया था प्रेरितों 1:8 में कि तुम यहीं पे रुके रहना, जब तक तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे, तब तक यहीं रुके रहना। You'll receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you'll be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part of the earth. प्रभु ने उन्हें कहा था कि तुम जब तक पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। And the purpose of the anointing was for them to be witnesses, not just witness, but to be a witness, meaning your life, your words, your faith, everything is a witness for Christ. और प्रभु ने उनको बोला था कि तुम गवाह बनोगे, हमारा जीवन से, अपनी बातचीत से, अपने गवाही से, कि किस तरह से प्रभु के गवाह हम बन सकते हैं। Only 120 were waiting. सिर्फ 120 लोग थे जो इंतजार कर रहे थे। What happened to the 5,000? What happened to the 4,000? What happened to all the people healed in Capernaum and other places? So many were blessed to the ministry. Only 120 were waiting for a spiritual blessing. Others were only looking for physical blessings. और 5,000 लोगों का क्या हुआ जिन्होंने रोटी खाई थी? 4,000 लोगों का क्या हुआ था जिन्होंने खाना खाया था? और लोग जो चंगा हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्मा लोग थी, वो कहाँ गए सब? सिर्फ 120 लोग थे जो इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा जी को पाने का। And they were having a desire to be a witness. That's why waiting on the Lord for anointing. और वो आशा में थे, उनकी इच्छा थी कि परमेश्वर का की आत्मा उन्हें मिलेगी, इसलिए उस अभिषेक को पाने के लिए वो इंतजार कर रहे थे। Without anointing, we can do nothing effectively in the Christian life. और बिना अभिषेक के हम अपने मसीह जीवन में कोई भी काम प्रभावी रूप से नहीं कर सकते। Now imagine God asking you in a dream, what do you want me to give you? मान लीजिए प्रभु आपको सपने में बोलते हैं कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। Like he asked Solomon, ask whatever you want me to give you. जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने पूछा था कि मांग मैं तेरे लिए क्या करूं। 1 Kings chapter 3 verse 5. What do you want me to give you? पहला राजा 3:5 में कि बता तू मैं तेरे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। Solomon knew exactly what to ask. तो सुलेमान जानता था उसको क्या मांगना चाहिए। He said, I want discernment, I want wisdom to govern your people. तो उसने कहा कि मेरे को बुद्धि और समझ दे ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। He knew what to ask, he knew why he was asking. और उसको पता था वो क्या मांगना चाहिए उसको और वो क्यों मांग रहा है उसको। When he was a small child, his father taught him, David taught him, get wisdom. Without cost, all you have, get wisdom. Wisdom is supreme. और क्योंकि उसके पिता दाऊद ने उसको बचपन में सिखाया था
कि बुद्धि सबसे ऊपर है, सब बातों में सबसे ऊपर बुद्धि है। What his father taught him when he was a small child, he remembered in a dream at night and asked specifically for wisdom. और जो उसके बाप ने उसको बचपन में सिखाया था, उसने उसको याद रखा, और जब परमेश्वर ने उसको सपने में उससे बात करी तो उसको याद रहा मुझे क्या मांगना है। He could ask him for so many things. वो बहुत कुछ चीजें मांग सकता था। And the Bible says in the same chapter, verse 9, 10, 11, God was pleased Solomon asked for this. और इसी अध्याय पहला अध्याय तीसरे अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। And God told him, because you asked for this, do not ask for long life or wealth or death of enemies, I'll give you what you asked for. और प्रभु परमेश्वर ने उसको बोला, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा और ना तो दीर्घायु, ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने का विवेक का वरदान मांगा, इसलिए मैं तेरे को ये सब कुछ दूंगा। And God even gave him what he did not ask for. God gave him wisdom. God gave him wealth. He didn't ask for wealth. God gave him wealth. और परमेश्वर ने जो सुलेमान ने नहीं मांगा था, उसने तो सिर्फ बुद्धि मांगी थी, पर परमेश्वर ने उसको धन संपत्ति भी दी। And God was pleased that Solomon did not ask for long life or wealth or death of the enemies. और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ कि उसने ना तो लंबी उम्र मांगी, ना अपने धन संपत्ति मांगी, और ना अपने दुश्मनों का नाश मांगा। इस बात से परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। There's nothing wrong asking God for long life. परमेश्वर से दीर्घ आयु मांगना कोई बुरी बात नहीं है। Nothing wrong asking God for wealth. धन मांगना भी कोई बुरी बात नहीं है। In the Old Testament time, nothing wrong asking God for death of enemies, not in the New Testament time. पुराने नियम में तो अपने शत्रुओं की मृत्यु मांगना भी बुरा नहीं था, नए नियम में ऐसा नहीं है। But Solomon did not ask for these things. पर सुलेमान ने ये सब चीजें नहीं मांगी। He asked for wisdom. उसने बुद्धि मांगी। And God is pleased. Solomon asked for wisdom. And God gave what he did not ask for. He gave also wealth. और परमेश्वर इस बात से सुलेमान से प्रसन्न हुए और उसको वो भी दिया जो उसने नहीं मांगा था, उसको धन दिया। The fundamental question is, do we please God by our prayers, what we ask him for? पर मुख्य बात यह है कि क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्या मांगते हैं हम परमेश्वर से। Sometimes we keep on pestering God for something. He will give it to us not because he wants us to have it, but he wants to understand the uselessness of having it. और कई बार हम परमेश्वर से बार बार एक ही चीज मांगते रहते हैं, पर परमेश्वर हमारे को नहीं देता, क्योंकि वो ये नहीं कि वो उसको ये समझाने के लिए कि उसको पता है कि ये चीज हमारे किसी काम की नहीं है। And therefore, God wants us to ask him for the right things, and especially, please seek spiritual blessings. इसलिए परमेश्वर हमारे को चाहता है कि हम सही चीजें परमेश्वर से मांगे, और खास करके हम उससे आत्मिक आशीर्वाद मांगे। Please seek spiritual wisdom, not worldly wisdom. हमें परमेश्वर से आत्मिक बुद्धि मांगनी है, संसारिक बुद्धि नहीं मांगनी। It's a will of God that every one of his children has his wisdom. परमेश्वर की इच्छा है कि उसके हर एक बच्चा उसकी बुद्धि उनके पास हो। In James chapter 1 verse 5 we read, if anyone lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without finding fault, it will be given. याकूब 1:8 में लिखा है, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, कि जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। Wisdom is not a choice for a Christian, it's mandatory for a Christian. बुद्धि एक विश्वासी के लिए कोई चुनाव नहीं है, ये उसके लिए जरूरी है। And if you lack wisdom, we ask God. God's word says, if you want wisdom, ask him. If you lack wisdom, ask him. If you feel lack God's wisdom, ask him. He will give it to you. His wisdom will give it to you. और वो परमेश्वर की बुद्धि, अगर हमारे को लगता है हमारे पास कमी है, हम उससे मांगे, परमेश्वर देना चाहता है, वो बिना उलाहना हमें अपनी बुद्धि देगा। It pleases God when you say, Lord, I want wisdom to be able to live in this world and face difficult people, difficult circumstances with the wisdom you give me. और हम परमेश्वर बड़े आनंदित होते हैं जब हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं कि आपकी बुद्धि मुझे मिले, ताकि मैं आपके इस संसार में जो जीऊं तो आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी मनसा के अनुसार जी सकूं। Wisdom is one of the blessings of God. He gives us, and He gives us because of His grace, not because we earn it. We receive it because we need it. God knows we need it. और परमेश्वर की बुद्धि जो है, ये उसके अनुग्रह से हमें मिलती है, और इसलिए नहीं कि हमारे को जरूरत है, पर वो उसका अनुग्रह वो हमें खुद देना चाहता है। We can't earn wisdom, we receive wisdom. हम इसको कमा नहीं सकते, हम परमेश्वर से इस बुद्धि को सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं। Now, when Solomon asked God for wisdom, he also knew why he was asking. I want wisdom to govern your people. जब
सुलेमान ने बुद्धि मांगी, वो जानता था क्यों बुद्धि मांग रहा है। वो कहता है कि मैं तेरे लोगों को न्याय करने के लिए बुद्धि चाहता हूँ। In the same way, when we ask God for wisdom, we should know why we're asking. इसी तरह से जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे, हमें मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर से बुद्धि क्यों मांग रहे हैं। We may not be governors, we may not be rulers, but we are dealing with people, we're dealing with circumstances, difficult people, difficult circumstances, and for that we need wisdom. हम तो किसी का न्याय नहीं कर रहे, ना किसी पर राज कर रहे, पर हम समस्या वाले लोग, कठिन लोगों का सामना करते हैं। उनके साथ बर्ताव करने के लिए हमारे को परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। Wisdom will teach us humility, James 3:13. और याकूब 3:13 के अनुसार से ये बुद्धि जो है हमारे को नम्रता सिखाती है। When you become humble, we get more grace. क्योंकि जब हम नम्र हो जाते हैं, हमें और अनुग्रह मिलता है। We receive wisdom by the grace of God. With wisdom, we become more humble. We receive more grace. So there's no limit to grace. तो जब परमेश्वर से अनुग्रह पाते हैं, तो हमें बुद्धि मिलती है, और फिर हम नम्र हो जाते हैं। जब नम्र होते हैं, परमेश्वर हमारे को और अनुग्रह देते हैं, और अधिक बुद्धि मिलती है। And therefore, please ask wisdom, because all of us face difficult people, difficult circumstances. We do not know how to respond. We are in crossroads. तो हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए, क्योंकि हमें कठिन लोगों का सामना करना पड़ता है, और हम एक जैसे चौराहे पे खड़े हैं, ऐसे हो जाते हैं। और परमेश्वर से इसलिए हमारे को बुद्धि मांगनी चाहिए। For serving God, we need wisdom. परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी हमें बुद्धि चाहिए। As believers, we are involved in preaching gospel to people of other faiths, plus building up Christians and teaching God's word to Christians also, all of us. और जब मसीह जीवन में है, तो हमारे को अपने मसीह जीवन की गवाही दूसरे लोगों को देनी है, और उसके साथ साथ जो हमारे मसीही लोग हैं, उनको विश्वास में बढ़ाने के लिए, मसीह बढ़ाने के लिए भी हमारे को जिम्मेदारी है। So both we need wisdom. और इन दोनों कामों के लिए हमें बुद्धि चाहिए। The Apostle Paul was an evangelist, plus he was a teacher, Bible teacher. हमारा पौलुस प्रेरित जो था, वो एक सुसमाचार प्रचारक भी था, और साथ में वो एक शिक्षक भी था। With regard to the ministry of sharing gospel, he writes to Colossians in Colossians 1:28. और शिक्षा की बात में कोलोसियों 1:28 में पौलुस लिखते हैं, We proclaim him, admonishing and teaching everyone with all wisdom. जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह के में सिद्ध करके उपस्थित करें। Proclaiming God's gospel to people with wisdom, to know what to speak, when to speak, how to speak, when not to speak. हम परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, सुसमाचार देते हैं, हमारे को बुद्धि की जरूरत होती है कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है। So Colossians 3:16, Paul writes, कोलोसियों 3:16 में पौलुस लिखते हैं, Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। Wisdom is the knowledge of using knowledge. और ज्ञान, बुद्धि जो है, ज्ञान को प्रयोग करने के लिए हमारे को बुद्धि की जरूरत होती है। When we know the Bible very well, we have knowledge. अगर हम बाइबल को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये हमारा ज्ञान है। Knowledge puffs up, but love builds up. और ये जो ज्ञान होता है, ये घमंड से हमें फुला देता है, पर जो प्रेम है वो हमारे को बढ़ाता है। Through the word, we know God more and more. We have the love of God. और जब परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम को अधिकारी से जानते हैं। You can know the entire Bible from Genesis to Revelation, but if you don't have wisdom, you don't know how to apply it. हो सकता है हमें पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी पता हो, पर अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो हमारे को ये नहीं पता होगा इसको हमें अपने जीवन में कैसे अमल में लाना है। So as we grow in the knowledge of God and His Word, ask God wisdom to bring out that word to people as you talk to them. और जब हम परमेश्वर से हमारे को इस बुद्धि मांगने की, प्रभु जो मैं इस वचन को जो आपने मुझे दिया है, ये लोगों तक मैं किस तरीके से दूं, ये आप मुझे बुद्धि दीजिए। If you look at the book of Proverbs 13:10, it says, pride only brings quarrels, but wisdom is found in those who take advice. नीति वचन 13:10 में लिखा है, झगड़े डगड़े केवल अहंकार से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं, उनके पास बुद्धि रहती है। Same chapter verse 20, those who walk with the wise grow wise. और इसी में 20वें आयत में लिखा है,
बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। The body of Christ identifies with people who have godly wisdom and learn from them, be humble and learn from them, and slowly that wisdom manifested in your own lives. और जब ये परमेश्वर का ज्ञान होता है तो उसका प्रेम हमारे जीवन में आ जाता है, और ये प्रेम हमारे जीवन से दूसरों पर भी प्रकट होता है। And therefore, ask God wisdom in everything that we do, responding to difficult people, difficult circumstances. We are always among people who are trouble us and who irritate us, and we need wisdom to be patient and not react. तो हम जब जीवन में हैं, हमारे को बहुत कठिन लोग मिलते हैं जो हमें परेशान करते हैं, और ऐसे में हमारे को बुद्धि की जरूरत है कि हम उनकी प्रतिक्रिया ना करें उनके विरोध में, पर उनके साथ किस तरह से बर्ताव करें, ये बुद्धि से हमें सिखाती है। Proverbs 19:11 says, "A man's wisdom gives him patience. This is glory to overlook an offense." और नीतिवचन 19:11 में लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, जो विलंब से प्रोप करता है और अपराध को भुलाना उसको सुहाता है। Now we know why we're asking wisdom, but we must also know how he answers. How does God answer our prayer for wisdom? और हमें ये तो पता चला कि हमें बुद्धि मांगनी है, पर हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना को किस तरह से उसका उत्तर देते हैं। Wisdom comes even as we apply scriptures in our lives. We live the scriptures. जब हम इस जीवन को अपने जीवन में अमल में लाते हैं, वचन के अनुसार जीते हैं, तो बुद्धि स्वाभाविक रीति से हमारे पास आती है। Even in the Old Testament time, we read in the book of Deuteronomy chapter 4 verse 6, the Lord tells through Moses to his people, "Observe carefully all these commandments, for this will show your wisdom among nations, who will hear of these decrees and say, surely this great nation is a wise and understanding people." और पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 4:6 में प्रभु परमेश्वर मूसा के द्वारा से बताते हैं, तो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोग के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे सब इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये जाति बड़ी बुद्धिमान और समझदार है। Even in the New Testament we read in 2 Timothy 3:15, scriptures make us wise unto salvation. और दूसरा तिमोथी 3:15 में भी हम जानते हैं कि जो वचन जो है हमारे को बुद्धिमान बनाता है। Not only that, by the anointing of the Holy Spirit, we have what is known as the word of wisdom as a gift of the Holy Spirit. और हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन से, कि परमेश्वर का वचन जो है ये एक दान है हमारे को, उसके द्वारा से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। Now, if you look at the Luke chapter 11 to 13, and compare that with Matthew chapter 7, 9 to 11, we're going to see what similar thing both Jesus says, but then slight difference. लूका 11वां अध्याय और मत्ती के 7वें अध्याय में अगर हम कुछ आयतों को देखें, उसकी तुलना करें, जहाँ पे तो वहां पे हम देखेंगे कुछ फर्क को हम यहाँ पे देखते हैं। Luke 11 to 13, Jesus says, "Which your father and son as a fish will give him a snake, or ask egg will give a scorpion? You are evil not to give good gifts to children. How much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him?" लूका 11 से 13 में पढ़ते हैं, तुम में से कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? तो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? Okay, that's Pavitra Atma in Luke. Look at Matthew chapter 7, 9 to 11. There Jesus says, "Which your father when a son asks for bread will give him a stone, or asks for a fish will give him a snake? You are evil no give good gifts to children. How much more will the heavenly Father give good gifts to those who ask him?" और मत्ती 7वें अध्याय में अगर हम देखें कि तुम में से कौन मनुष्य है यदि अपने पुत्र को जो उससे मांगे तो उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, वो मछली मांगे तो उसे सांप दे? तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? To compare that with Luke, Luke talks about Holy Spirit and Matthew talks about good gifts. हाँ, तो लूका जो है वो पवित्र आत्मा की बात करता है, आत्मिक बात करता है, और मत्ती में जो है वो अच्छी वस्तुओं की बात करता है। One of the good gifts of the Holy Spirit is the word of wisdom. और ये जो एक अच्छी वस्तु जो परमेश्वर की है, वचन की है, वो है ज्ञान का वचन। So we should know how to receive this gift. Spend time living by the word of God and saying, "Holy Spirit, I need you. I'm thirsty for you. I want your anointing that I manifest
the wisdom that comes from above, not of earth. तो हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मांगना चाहिए, पवित्र आत्मा जी मुझे आप सिखाएं अपने वचन के द्वारा से, मैं ये बुद्धि जो स्वर्ग से आती है वो प्राप्त करना चाहता हूँ, ये बुद्धि ज्ञान जो पृथ्वी का है ये मुझे नहीं चाहिए। This wisdom also manifested in settling disputes between believers. और ये जो बुद्धि है ये हमारी मदद करती है कि जब विश्वासियों के बीच में मतभेद हो जाता है उसको भी वो सही करने में, सुलझाने में मदद करती है। That's why in 1 Corinthians chapter 6, we read about how the Apostle Paul is in a way rebuking the church in Corinth for taking the dispute before the ungodly, before Gentiles, to settle the disputes. और हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय में कि कैसे पौलुस जो है वहां पे जो उनमें एक मतभेद हो गया था, वाद विवाद हो गया था, उसको किस तरह से वचन के द्वारा से उसको बुद्धि से सुलझाता है। He says, don't you have people in a church who can settle this case? Why take your dispute before the ungodly, before the Gentiles? वो कहता है कि तुम अधर्मियों के पास क्यों जाते हो? क्या तुम्हारे पास पवित्र लोग नहीं है जिनके पास तुम जाके अपने विवाद को सुलझा सकते हो? The saints are going to judge the world. They're going to judge angels. Can't you settle your dispute? But is there anybody in your church who doesn't have wisdom for this? वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? तो तुम जगत का न्याय करना है तो क्या इस छोटे छोटे झगड़े को तुम न्याय करने के योग्य नहीं? Well, let's read 1 Corinthians 6 chapter, the first 7 verses. We'll read only Hindi so that to save time. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय की पहली 7 आयतें हम पढ़ लेंगे। क्या तुम में से किसी Those of us do not Hindi can follow the English in your Bibles, but we read in Hindi. Yes, please. क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरों के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? सो यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम्हें एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा होता है और वो भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? Paul said, why not be wrong? Why not be cheated? Why take a dispute before the unbelievers? तो कहता है कि अपनी हानि क्यों नहीं सह लेते, क्यों अन्याय क्यों नहीं सह लेते, बल्कि इसके ये सह लो, बल्कि पर ये अन्य जातियों के पास मुकदमे के लिए मत जाओ। Is it possible there's no one among you who can judge these cases? क्या सचमुच तुम में कोई ऐसा है जो तो तुम्हारा मुकदमा ना कर सके? Every believer is supposed to have the wisdom of God, and you are a church. Is it possible that nobody in the church can judge the case? Why go before the ungodly? और हमें तो ये बुद्धि परमेश्वर मिली है और हमें ये कलीसिया का न्याय करना हमारे को खुद करना चाहिए कि हम क्यों अन्य जातियों के पास जाके अपना न्याय के लिए उनके पास जाएं? In a earthly court of law, the judges judge on the basis of earthly wisdom and the law of the land. Earthly wisdom. और जो हमारे देश का न्याय हो, किसी भी देश का जो न्यायाधीश होता है वो उस देश के कायदे कानून, उस देश की और जो सबूत है उसके आधार से पृथ्वी की बुद्धि के अनुसार ही वो न्याय करता है। Like we've been given God's wisdom is far above human wisdom. पर हमें तो परमेश्वर की बुद्धि मिली है, परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से बहुत ऊपर है। And today, how many churches today are having court cases among themselves, fighting about property, fighting about money, and we are already defeated. Whereas we all have the potential of having God's wisdom given to us by His grace, nothing but by His grace. और हम ऐसे कितनी कलीसियाओं में हम देखते हैं कि आपस में कोर्ट केस चल रहे हैं संपत्ति के लिए, किसी और बात के लिए, और पर हमारे को परमेश्वर ने जबकि हमारे को इसलिए बुलाया कि हम बुद्धि से जिए, और ये सब उसके अनुग्रह से हम सब प्राप्त कर सकते हैं। I don't want to criticize any church, any congregation, but let's all who are in the Zoom right now, there are about 42 people in the Zoom right now, let's each one of us ask the Lord, Lord, give me your wisdom, Lord. You said, if I lack wisdom, I can ask you, and you'll definitely give without finding fault. So give me your wisdom that I am able to deal with people
outside the church, inside the church, difficult circumstances, there are rise about difficult circumstances. तो हम चाहे किसी भी कलीसिया के हों, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, पर हम चाहे अब यहाँ 42 लोग करीब हैं, हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आपने बोला कि जिसको बुद्धि की कमी है वो बुद्धि मांगे, आप उसको देंगे। हम आपसे बुद्धि मांगते हैं ताकि हम कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर सब लोग जहाँ पे भी हैं वहाँ हम बुद्धिमानी से जीत सके, न्याय कर सकें। Whenever they complain to God about other people in the church, why they're not like that, God says, what about you? Why can't you be an example? और हम बहुत बार कहते हैं ये प्रभु ऐसा है, प्रभु वो ऐसा है, वो कहता है कि तू अपने बारे में सोच और तू खुद एक उदाहरण क्यों नहीं बनता। So if you feel you don't find role models in the church, then become a role model. Tell him, Lord, I'm here, use me, Lord. अगर आपको लगता है कि आपके कलीसिया में कोई ऐसा उदाहरण वाला व्यक्ति नहीं है जिसको देख के कलीसिया चल सके, तो आप वो उदाहरण बने, परमेश्वर से मांगे तो मुझे वो उदाहरण बनाए। And please ask him for wisdom. Imagine of all things Solomon could have asked, David could have taught Solomon, he said, ask for wisdom. और हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे। परमेश्वर के वचन में लिखा याकूब में कि अगर आपको बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगो और बिना उलाहने के वो देगा। Wisdom will teach us how to respond to difficult people, difficult circumstances, disputes in the church, disputes in the family also, how to resolve it. Wisdom will teach us. और ये बुद्धि जो है हमारे को सिखाती है कैसे विवादों का घर में, घर के बाहर, कलीसिया में और मुसीबत कठिन लोगों के सामना करने में हमारे को बताती है किस तरह से उनका सामना करें और इस समस्या का समाधान करें। Next week I'll speak on one more blessing through grace, that is the strength of God, the power of God to be able to respond what wisdom teaches us. और अगली बार हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है कैसे हमें सामर्थ देता है कि जो बुद्धि हमारे को मिली है उसको हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसको अगली बार हम देखेंगे। Ephesians 6:10 Paul writes, finally be strong in the Lord and in his mighty power. और इफिसियों 6:10 में लिखा निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। We'll talk of strength next week. So much